Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this videos, we'll see some questions related to the first version of pumping lemma, and then we'll also discuss the second version of pumping lemma for non-regular languages. So let's begin. Now suppose I am given with the question an bn plus 1 और हमें प्रूव करना है कि ये particular language is non-regular. Now for this we can use the first version of pumping lemma. So we have discussed this in detail in the last video of non-regular languages. You can refer that video first before going through with this video. Now let's take different values of y. So case 1. So what all words, क्या-क्या words इस language को belong कर सकते हैं, जितने a's हैं b's उससे एक ज़्यादा होना चाहिए. So let's say we can have abb, we can have aa, triple b, we can have triple a, 4 times b and so on. So let's say if I take the word abb, now इसमें हम y की क्या-क्या possibilities ले सकते हैं. Let's say I take y as this b, right? So we can take any string of b's as my y. Now अब जब हम इसको pump करेंगे using x, y, y, z, then what will happen? The count of y will keep on increasing. That means the count of b will keep on increasing. If I do x triple y z, then this will be the outcome. Now all these words इन सब में क्या हो रहा है, b का काउंट तो बढ़ते जा रहा है बट a का काउंट सेम है. एंड हमारे क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि जो a का काउंट है b के काउंट a के काउंट से एक ज्यादा होना चाहिए, राइट? सो फॉलोइंग दिस we will have too many b's in our string which is not allowed. Let's take case 2. Now if I take y as the initial is, right? अगर हम y को ये लेते हैं, x की वैल्यू हमारी null है, this becomes my z. Now if I apply x, y, y, z, then what will happen? The count of these a's will keep on increasing, but now the count of b's will remain stagnant. It will remain same. Right? So this again shows we will have, अगर हम y को a's ले लेते हैं तो we will have too many a's in our string again which is not allowed. Now the third possibility which we can have, अगर हम y को ले ले substring ab. Now इस particular language में हमारी ab की सिर्फ एक string होगी. Only one substring of ab is allowed in जितने भी in all the words which are belonging to this language. अब अगर हमने y को ले लिया ab substring, this becomes my z. If I keep on increasing the count of y using x, y, y, z, then what will happen? The count of ab substring will keep on increasing. Now which is not allowed because according to the language only one ab string is allowed in my language. So all these shows that x, y, y, z does not belong to my language. So hence it is non-regular. Let's take another question. Suppose हमारे पास word है an, bn. Let's say this is my language, right? A, b और a का count same है. Now what all words can belong to my language? I can have aba, I can have double a, double b, double a, I can have triple a, triple b, triple a, and so on. Now कोई particular word लेते हैं इसको नॉन रेगुलर प्रूफ करने के लिए. सपोज मैंने ए बी ए लिया. अब y को हम साइमल्टेनियसली कुछ भी ले सकते हैं. हम इनिशियल एज भी ले सकते हैं, हम ये बी भी ले सकते हैं, हम ये वाले जो ट्रेलिंग एज है इनको भी ले सकते हैं, हम y को ये ए बी सबस्ट्रिंग भी ले सकते हैं और हम y को ये बी ए सबस्ट्रिंग भी ले सकते हैं. तो दीज आर द 5 पॉसिबिलिटीज जो हमारी अलाउड है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, राइट? तो अगर मैंने y को लिया ये इनिशियल एज, देन व्हाट विल हैपन? इनिशियल पंप करने के बाद the count of initial a's will keep on increasing which is not allowed as per the language. Case 2 ले लेते हैं. अगर हम y को ले लेते हैं middle b's, this is my x, this is my z. What will happen? पंप करने पे the count of these b's will keep on increasing और जो a's हैं वो same रहेंगे again which is not allowed. Third possibility, अगर हम y को trailing a's ले लेते हैं, अगर हम y को trailing a's ले लेते हैं, this becomes my x. जब हम पंप करेंगे x, y, y, z तो ट्रेलिंग एज का काउंट इंक्रीज होने लग जाएगा अगेन विच इज नॉट अलाउड. केस 4, अनदर पॉसिबिलिटी इज अगर y को मैंने ये ए बी सबस्ट्रिंग ले लिया, दिस इज माय z. नाउ इफ आई पंप इट x, y, y, z, the count of this a b substring will keep on increasing again which is not allowed as per the language only one a b substring is allowed in my language. Case 5,
अगर y को हमने ये BA सबस्ट्रिंग ले लिया, again as per the language only one BA substring is allowed, but when you pump it to x, y, y, z, then the count of BA substring keeps on increasing again, which is not allowed as per the language. So all these cases shows that whatever you do, irrespective of whatever be the value of y, after pumping it, जो भी हमारे words होंगे, they are not belonging to the language, hence the language is non-regular. Let's take another example. Suppose I have the language AN, B2N. That means the count of B is twice the number of A's. तो हमारे क्या क्या words belong करेंगे इसको? ABB, I can have double A, 4 times B, I can have triple A, 6 times B and so on. Case 1. Case 1 में हम क्या ले सकते हैं? अगर y को मैंने लिया these B's, right? चाहे आप एक बी लो या चाहे आप क्लम्प ऑफ बीज लो, दैट इज द सेम थिंग. दिस बिकम्स माय z. नाउ इफ आई पंप इट टू x, y, y, z, द काउंट ऑफ बीज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, dissatisfying the condition, hence this is not allowed. Case 2, if I take y as these initial A's, after pumping it to x, y, y, z, the count of A's keep on increasing, again not satisfying the condition, hence the given word does not belong to the language. Last possibility हम इसमें क्या ले सकते हैं? अगर y को मैं ले लूँ substring AB. So if I take y as the substring AB, this is my y, this is my z. Now if I pump it, it becomes AB, AB, B. Again this word does not belong to the language. So all these cases show that the given language is non-regular. Now let's take another example. Suppose I take the word as AN, BM, CK, where N, M, K are greater than or equal to 1. Now क्या हम इस लैंग्वेज को नॉन रेगुलर प्रूव कर सकते हैं? कैन वी प्रूव दिस लैंग्वेज एज नॉन रेगुलर? नाउ क्लियरली वी कैन सी ओवर हियर कि जो ए का काउंट है और बी का काउंट है और सी का काउंट है वो आपस में किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है. ए का अलग काउंट है जो डिपेंड कर रहा है एन पे, बी का अलग काउंट है जो डिपेंड कर रहा है एम पे, सी का अलग काउंट है जो डिपेंड कर रहा है के पे. तो तीनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, राइट? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वी कैन prove that this language is not non-regular, this is a regular language, because we can write a regular expression corresponding to this language. कैसे हम इसका regular expression लिख सकते हैं? Condition कहती है कि n, m, k should be greater than or equal to 1. That means a का, b का और c का एक तो तीनों होने ही चाहिए. एक a होना चाहिए, एक b होना चाहिए, एक c होना चाहिए. उसके बाद a चाहे कितने भी नंबर में हो, b चाहे कितने भी नंबर में हो, c चाहे कितने भी नंबर में हो, राइट? तो यहाँ पे हमें कुछ काउंट रखने की जरूरत नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. तो ये क्लियरली शो करे द लैंग्वेज इज रेगुलर. तो हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं लाइक दिस. ए के मैंडेटरी है, उसके बाद कितने भी एज आ सकते हैं. एक बी मैंडेटरी है, उसके बाद कितने भी बीज आ सकते हैं. एक सी मैंडेटरी है, उसके बाद कितने भी सीज आ सकते हैं, राइट? सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज, हेंस दिस प्रूव्स दैट दिस इज अ रेगुलर लैंग्वेज. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Suppose I am given with the language AI, B, 2J, IJ should be greater than or equal to 1. Again we can see over here, I और J आपस में दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, राइट? दैट मीन्स A और B में आपस में कोई रिलेशन नहीं है. हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि A का क्या काउंट है उतना ही B का काउंट हो. सो दिस शोज दैट द लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज. और कैसे हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? वी नो कि जो नंबर ऑफ B's हैं उनका काउंट इंक्रीज कर रहा है बाय ट्वाइस और ए का काउंट इंक्रीज कर रहा है जो डिपेंड कर रहा है ऑन द वैल्यू ऑफ आई. तो हम एक और आई और जे की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 1. दैट मीन्स ए के तो होना ही चाहिए, उसके बाद कितने भी एज आ सकते हैं, राइट? सिमिलरली जो बी का काउंट है वो इवन नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है. सो कैन वी राइट इट लाइक दिस. बी का काउंट अगर इवन नंबर में इंक्रीज हो रहा है यानी कि 2 बी तो होंगी, राइट? जे की वैल्यू मिनिमम 2 हो सकती है. जब हम 2J करेंगे तो J की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 2, यानी कि 2 B तो होनी चाहिए. उसके बाद जो B का काउंट है वो इवन नंबर में इंक्रीज करेगा. तो कैन वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, राइट? सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल.
Now suppose I am given with another language which is the equal language. Now what is the equal language? Equal language says that we have equal number of A's and B's. अब A और B का जो काउंट है वो सेम होना चाहिए, बट ये इसमें मैटर नहीं कर रहा कहीं पे भी कि A पहले आने चाहिए या A बाद में आने चाहिए. तो द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि उन दोनों का काउंट सेम होना चाहिए. अगर एक A है तो एक ही B हो, चाहे कहाँ पे भी हो, दैट डज नॉट मैटर. दिस इज ऑल्सो वैलिड. अगर मैं लिखूं A डबल B A, दिस इज ऑल्सो वैलिड. इक्वल नंबर ऑफ A's एंड B's. अगर मैं लिखूं B डबल A B, दिस इज ऑल्सो वैलिड. So all these words, if I write double B double A, this is also valid. So all these words belong to my equal language, which says कि equal number of A's and B's. Now can we say this equal language? अगर equal number of A's and B's अगर हमारे होने चाहिए, अब इसको प्रूव करने के लिए कि क्या ये रेगुलर लैंग्वेज होगी या नॉन रेगुलर लैंग्वेज होगी, इसके लिए अगर मैं लिखूं, now we have learned one language which is ANBN language. ANBN language में क्या था? ANBN लैंग्वेज में था कि A और B जो है दोनों का काउंट तो सेम हो ही हो, बट साथ साथ जो A's हैं वो पहले आने चाहिए B से, राइट? दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस लैंग्वेज, राइट? नाउ कैन आई से इस लैंग्वेज में क्या है? ये लैंग्वेज है इक्वल नंबर ऑफ A's एंड B's वेयर A's कम बिफोर B's, राइट? I have one more language which is A star B star. A star B star लैंग्वेज क्या है? यहाँ पे काउंट मैटर नहीं कर रहा, यहाँ पे बस ये मैटर कर रहा है कि A's पहले आने चाहिए B से, राइट? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लैंग्वेज ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's वेयर A comes बिफोर B's, राइट? इसी से मिलती जुलती एक और लैंग्वेज लेते हैं जो अभी हमने देखी, विच इज द इक्वल लैंग्वेज. इक्वल लैंग्वेज में क्या होता है? इक्वल लैंग्वेज में है बस इक्वल नंबर ऑफ A's एंड B's, राइट? नाउ इफ वी क्लियरली लुक एट दीज लैंग्वेजेस, अगर कैन आई से कि अगर मैं इन दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन करूं, दैट मीन्स A स्टार B स्टार का इंटरसेक्शन करूं विद द इक्वल लैंग्वेज, तो हमें ये ANBN लैंग्वेज मिल जाएगी. कैसे मिल जाएगी? A स्टार B स्टार लैंग्वेज कहती है ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's वेयर A कम्स बिफोर B. इक्वल लैंग्वेज कहती है इक्वल नंबर ऑफ A's एंड B's. दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मतलब हुआ? ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ A's एंड B's वेयर A कम्स बिफोर B एंड equal number of A's and B's, right? Which is nothing but this language, right? So ANBN language is nothing but the intersection of A star B star and equal language, right? अब ये जो A star B star लैंग्वेज है ये तो हमें क्लियरली पता है दिस इज अ रेगुलर लैंग्वेज. हमने रेगुलर एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है इसका. दिस इज अ रेगुलर लैंग्वेज. ANBN लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज है? नॉन रेगुलर है. ये हम ऑलरेडी देख के आए और इसको हम फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा से प्रूव भी कर चुके हैं. दिस इज अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज. नाउ जब हमने इन दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन करा तो हमें मिल रही है एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज, और जिन दो लैंग्वेजेस का हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं उसमें से एक लैंग्वेज क्या है? मेरी रेगुलर लैंग्वेज. तो अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट है ये नॉन रेगुलर है, इसका क्या मतलब है कि ये जो इक्वल लैंग्वेज थी ये भी मेरी नेचुरली क्या है? नॉन रेगुलर है. क्योंकि अगर ये रेगुलर होती तो मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पे भी रेगुलर लैंग्वेज मिलती, बट इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पे हमें तो एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज मिल रही है. तो ये क्या शो करता है? दैट इक्वल लैंग्वेज इज ऑल्सो अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज. So from this also we can prove that equal language is non-regular language, or we can prove it using the first version of pumping lemma. Let's take now the second version of pumping lemma. Now before coming to the second version of pumping lemma, let's first see कि हमें second version of pumping lemma की requirement क्यों पड़ी. Now suppose अगर मेरे पास alphabet given है with a single a, right? अगर मैं इस पे एक लैंग्वेज लिखूं an where n is even, right? This is my language. तो मेरे क्या क्या वर्ड्स बिलोंग करेंगे इसको? मेरे वर्ड्स बन सकते हैं a raised to the power 0, I can have a raised to the power 2, I can have a raised to the power 4, I can have a raised to the power 6, I can have a raised to the power 8 and so on, right? अब द क्वेश्चन इज क्या ये लैंग्वेज एक रेगुलर लैंग्वेज है या नॉन रेगुलर लैंग्वेज है? रेगुलर लैंग्वेज में हमने देखा था
कि किसी भी लैंग्वेज को रेगुलर होने के लिए अगर हम उसमें कोई पैटर्न या लूप आइडेंटिफाई कर ले, राइट, और वो पैटर्न या लूप को इस टाइप से हो कि जब हम उस पे बार बार रीआइट्रेट करें तो हमें अपनी लैंग्वेज के सारे वर्ड्स या सारी स्ट्रिंग्स मिल जाए, राइट। तो क्या हम इस लैंग्वेज में कोई पैटर्न या लूप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं इस लैंग्वेज के, ऑल द स्ट्रिंग लेंथ्स दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि दे आर वेरिंग बाय अ कॉमन डिफरेंस, राइट। सबसे पहले a raised to the power 0, then 2a, then 4a, then 6a, then 8a and so on, right? तो हम इस लैंग्वेज पे इसका अगर मुझे कुछ भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना हो या मुझे इस लैंग्वेज के लिए कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी इनके बीच का कॉमन डिफरेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वी नो देयर इज अ कॉमन डिफरेंस, तो जो भी इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस है अगर मैं उसे एक लूप पे रख लूं, राइट, और अगर मैं उस पे बार बार रीआइट्रेट करूं तो मेरे सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज के फॉर्म हो जाएंगे, right? So basically, in order for the language to be regular, we must identify some pattern or loop on which if we reiterate, we get all the words of my language. Clearly, हमने pattern identify कर लिया, so ये language किस type की regular language है, right? Now let's suppose instead of taking the value of n as even, same language लेते हैं, but now let's take the value of n as odd. तो क्या क्या words होंगे? A1, A3, A5, A7, A9, A11, so on. Again, वर्ड्स कितने से वेरी कर रहे हैं? दे आर वेरिंग बाय अ कॉमन डिफरेंस। अगेन उस कॉमन डिफरेंस को अगर हम लूप पे रख लें एंड बार बार वी कैन रीआइट्रेट, विल गेट ऑल द वर्ड्स ऑफ माय लैंग्वेज, राइट। अगेन ये लैंग्वेज किस टाइप की हुई? दिस इज माय रेगुलर लैंग्वेज। नाउ लेट अस सपोज आई टेक अनदर लैंग्वेज वेयर n इज प्राइम, राइट। n यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर है। तो क्या क्या वर्ड्स इस लैंग्वेज को बिलोंग करेंगे? आई कैन हैव a raised to the power 2, I can have a raised to the power 3, I can have a raised to the power 5, I can have a raised to the power 7, I can have a raised to the power 11, I can have a raised to the power 13 and so on, right? n is my prime number. Now यहाँ पे क्या हम कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैन वी आइडेंटिफाई सम पैटर्न जिसको अगर मैं रीआइट्रेट करूँ तो मुझे सारे प्राइम नंबर्स मिल जाए जो मेरी लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं? We cannot find a pattern. So clearly ये शो करता है कि ये लैंग्वेज किस टाइप की है? नॉन रेगुलर है, राइट। बट नॉन रेगुलर लैंग्वेज है तो इसको प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट वर्जन पे भी तो जा सकते थे। हम फर्स्ट वर्जन में अगर हम कोई भी इस लैंग्वेज का वर्ड ले ले और उसको डिवाइड कर पा रहे हैं 3 स्ट्रिंग्स में, सच दैट जब हम y को पंप कर रहे हैं तो मुझे सारे वर्ड्स मिल जाए लैंग्वेज के, तो हम इसको अगर फर्स्ट वर्जन से प्रूव करते हैं। सपोज मैंने वर्ड लिया ट्रिपल ए, दैट मीन्स ए क्यू, राइट। इसमें लेट्स से इफ दिस इज माय x, दिस इज माय y. Now if I pump it x, y, y, z, then what will happen? This will be the outcome. Is this a prime number? Yes, this is a prime number. A raised to the power 5. This belongs to prime. Again I pump it x, triple y, z. What will happen? Double a, double a, double a. This is a raised to the power 6, a raised to the power 7. Again this is a prime number, right? तो फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा से तो हम इसको प्रूव ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा क्या कहती है? जब आप पंप करो तो जो वर्ड्स फॉर्म हुए वो ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपकी लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करने चाहिए, बट वर्ड्स तो मेरे यहाँ पे सारे लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे हैं, राइट। सो वी कैन नॉट प्रूव दैट दिस प्राइम नंबर इज अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज यूजिंग द फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा। सो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं जब हमारे फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा जो होता है उन केसेस में फेल हो जाता है। दैट इज वाई टू prove those languages as non-regular, we need to have a stronger version of pumping lemma, which is the second version of pumping lemma. That is why the second version of pumping lemma is required. Now let's see what does the second version says. So the second version of pumping lemma now say that if let L be an infinite language accepted by a finite automata with n states, then for all words W which are in L that have more than
n letters, there are strings x, y and z where y is not equal to null and length of x plus length of y should not exceed n. That means they should be equal to less than or equal to n, such that if w is some word which can be divided into three different strings x, y, z and x, y to the power nz, where n is 1, 2, 3, they are in n. So this is the second version of pumping lemma. Second version of pumping lemma क्या कहता है? Second version of pumping lemma ये कहता है कि suppose L कोई भी infinite language है, right? It is an infinite language and it is accepted by some finite automata. That means L हमारी कोई regular language है जिसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है. उस फाइनाइट ऑटोमेटा में n स्टेट्स, कैपिटल N, राइट? तो जितने भी वर्ड्स W जो हमारी इस रेगुलर लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे होंगे, प्रोवाइडेड उन्हीं वर्ड्स को हम कंसिडर करें जिनमें द नंबर ऑफ लेटर्स आर मोर देन n, राइट? तो जितनी हमारी स्टेट्स हैं, स्टेट्स अगर मेरी n है तो हमें वो वर्ड लेने हैं जिनमें n से ज्यादा लेटर्स हो, दैट हैव मोर देन n लेटर्स, राइट? ऐसे वर्ड्स को अगर हम डिवाइड कर पाए थ्री डिफरेंट स्ट्रिंग्स में x, y एंड z, कंडीशन क्या है कि हमें उन x, y एंड z की वैल्यू इस तरीके से लेनी है सच दैट y तो नल ना हो और जो लेंथ ऑफ x है और जो लेंथ ऑफ y, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे उसकी वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू n. यानी कि अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा में 8 है, राइट? तो हमें सबसे पहले तो एक ऐसा वर्ड लेना है जिसमें मोर देन 8 लेटर्स हो. सपोज मैंने एक ऐसा वर्ड लिया W जिसमें 9 लेटर्स है, राइट? तो अब इस 9 लेटर्स को हमें इस तरीके से x, y एंड z में डिवाइड करना है सच दैट लेंथ ऑफ x और लेंथ ऑफ y शुड नॉट एक्सीड n. दैट मीन्स इट शुड नॉट एक्सीड 8. एंड जब हम उस वर्ड को पंप करें यूजिंग x, y बेस टू द पावर n, z, तो जो भी मेरे वर्ड्स हो वो मेरे L को बिलोंग करने चाहिए. If this condition is satisfied, we say that the language is regular. But if this condition is being violated, we say that the language is non-regular. Now let's take different examples of the second version of pumping lemma. Let's take first example of palindrome language. So we have already seen what is a palindrome language, right? Now इस palindrome language को अगर हम first version of pumping lemma से prove करने की कोशिश करते हैं, let us suppose मैंने कोई word लिया ABA. Is this a word a palindrome? Yes, this word is a palindrome. अगर ये word मेरा palindrome है और हम इसको first version of pumping lemma से prove करने की कोशिश करते हैं, so let's say मैंने x को ले लिया ये A, y को ले लिया ये B और z को ले लिया ये वाला A, right? अब अगर मैं इसको पंप करूं x, y, y, z, तो मेरा क्या वर्ड फॉर्म होगा? A, B, B, A. Is this word a palindrome? Yes, this word is a palindrome. अगर मैंने लिया x, triple y, z, क्या वर्ड फॉर्म होगा? A, triple B, A. Is this word a palindrome? Yes, this word is a palindrome. अगर मैंने लिया 4 times y, तो क्या फॉर्म होगा? A 4 times B A. Is this word a palindrome? Yes, this word is a palindrome. तो ये क्या शो कर रहा है? फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा तो इस पे इजीली अप्लाई हो पा रही है. सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा ये वो लैंग्वेज पैलिंड्रोम हमारी किस टाइप की लैंग्वेज होनी चाहिए? दिस शुड बी अ रेगुलर लैंग्वेज. बट इज पैलिंड्रोम अ रेगुलर लैंग्वेज? नो, पैलिंड्रोम इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज. इट इज अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज. वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ एनी रेगुलर एक्सप्रेशन. सो क्लियरली पैलिंड्रोम इज अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज. बट फर्स्ट वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा तो इस पे इजीली अप्लाई हो पा रही है, राइट? सो दिस वायलेट्स आर pumping lemma for version 1 to prove palindrome language as non-regular. Hence we need a stronger version to prove that palindrome is a non-regular language. Hence we switch to the second version of pumping lemma. Now to prove palindrome a non-regular language using the second version of pumping lemma, let us suppose हम एज्यूम करके चलते हैं स्टार्टिंग में कि पैलिंड्रोम क्या है? मेरी एक रेगुलर लैंग्वेज है. हम इसे कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे, राइट? अगर मेरी रेगुलर लैंग्वेज है, सेकंड वर्जन ऑफ पंपिंग लेमा यही कहती है ना कि आपकी जो एल लैंग्वेज है अगर वो एक रेगुलर इनफाइनाइट लैंग्वेज है जिसको कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है,
फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, एल मेरी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। तो अगर एल आपकी कोई भी रेगुलर लैंग्वेज है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फाइनाइट ऑटोमेटा है विद सम एन स्टेट्स, राइट, तो हम लेके चल रहे हैं पैलिंड्रोम मेरी एक रेगुलर लैंग्वेज है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एफ ए है, कंसिडर any finite automata that accepts palindrome language and let us suppose इस finite automata में कुछ n states है, कोई भी हम random value n की यहाँ पे ले सकते हैं। अगेन जो भी मैं values ले रही हूँ these are all arbitrary values, हम कोई भी value ले सकते हैं to prove this that palindrome is a non-regular language. So consider any finite automata that accepts the palindrome language and it has, let us suppose, some 77 states in it. Again this value is completely random, we can take any value. Now अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू है 77, therefore for all words w in L that have more than n letters, अब हमें ऐसे words लेने हैं palindrome language में जिनमें more than 77 letters हो, right? So now consider the word, now the palindrome, let us suppose हमने कोई word लिया w जिसकी वैल्यू है a raised to the power 80, b a raised to the power 80. So clearly this word is a palindrome. क्या ये word palindrome है? Yes, this word is a palindrome. So now clearly हमने दो चीजें देख ली अब तक। L अगर मेरी कोई रेगुलर लैंग्वेज है जिसके अंदर n स्टेट्स हैं और हमें कोई ऐसे वर्ड चूज करना है जिसमें मोर देन n लेटर्स हो, तो दोनों काम हमने कर लिए। हम लेके चल रहे हैं पैलिंड्रोम मेरी रेगुलर लैंग्वेज है, उसको प्रूव करने के लिए हमने जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है उसमें कुछ 77 स्टेट्स हैं। हमने कोई भी रैंडम वर्ड ले लिया w जिसमें मोर देन 77 लेटर्स हो, सो एंड दिस इज अ पैलिंड्रोम, दिस बिलोंग्स टू दी पैलिंड्रोम लैंग्वेज। सो नाउ इट सेज आफ्टर दिस इज डन दैट हैव मोर देन n लेटर्स, there are strings x, y and z where y should not be null and length of x plus length of y should be less than or equal to n, right? तो ये क्या कह रहे हैं, अब हम इस वर्ड को जो हमने w लिया है इसको अगर हम डिवाइड कर पाए इन 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स x, y and z such that y should not be null and length of x plus length of y should be less than or equal to 77, हमने n नंबर ऑफ स्टेट्स क्या लिए 77, यानी कि हमने जो वर्ड लिया दैट इज a रेज़ टू द पावर 80, b a रेज़ टू द पावर 80, राइट। अब अगर मुझे इसको डिवाइड करना है इस वर्ड को 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स में x, y एंड z में सच दैट लेंथ ऑफ x एंड लेंथ ऑफ y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 77, तो इसका क्या मतलब है, जो भी मेरे x एंड y आएंगे वो यहीं से आ सकते हैं खाली, राइट, और तो हम कुछ इसमें ले नहीं सकते बिकॉज उनकी जो वैल्यू है लेस देन 77 होनी चाहिए। तो दोनों x एंड y दे हैव टू बी सॉलिड क्लम्स ऑफ a's एंड b's, राइट। तो अगर मैं इस लैंग्वेज को इस तरीके से लिख लूँ a रेज़ टू द पावर 77, a रेज़ टू द पावर 3, b a रेज़ टू द पावर 80, वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो जो भी मेरे x y होंगे वो यहीं से आ सकते हैं खाली, दिस इज माई x y एंड दिस इज माई z, राइट। नाउ हमने x y z में भी डिवाइड कर लिया। उसके बाद क्या कहता है ये, उसके बाद कहता है लेंथ ऑफ x लेंथ ऑफ y शुड नॉट एक्सीड n सच दैट w जो भी हमारा x y z था जब हम उसे पंप करें टू x y रेज़ टू द पावर n z, जो भी मेरे वर्ड्स आए वो l को बिलोंग करने चाहिए। सो लेट्स डू दैट। ये मेरा x y है, राइट, y भी बेसिकली सॉलिड क्लम्स ऑफ a's ही है, राइट, एंड x भी सॉलिड क्लम्स ऑफ a's है। जब हम इसको पंप करेंगे देन व्हाट विल हैपन, एक्स वाई वाई जेड हम करेंगे तो ये जो इनिशियल वाले एज हैं ये 77 से बढ़ने लग जाएंगे, राइट। सपोज दिस विल बी फर्स्ट पारी में हो गए a रेज़ टू द पावर 79, राइट। अब ये जो मेरा वर्ड है, क्या ये वर्ड मेरा एक पैलिंड्रोम बना, क्योंकि अब यहाँ पे एज का काउंट, इनिशियल एज का काउंट तो बढ़ गया, इनिशियल एज का काउंट हो गया a रेज़ टू द पावर 82, b a रेज़ टू द पावर 80, बाकी जो टर्मिनल वाले एज हैं वो तो सेम ही रहे। तो ये जो मेरे वर्ड्स अब बन रहे हैं क्या ये पैलिंड्रोम को बिलोंग कर रहे हैं, नो दे आर नॉट बिलोंगिंग टू द पैलिंड्रोम। बट अगर पैलिंड्रोम रेगुलर लैंग्वेज होती तो ये पैलिंड्रोम को बिलोंग करने चाहिए थे, राइट। सो इसका क्या मतलब है, जो हमने अजम्पशन लिया दैट पैलिंड्रोम इज अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज इज अ रेगुलर लैंग्वेज इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग आवर स्टेटमेंट। हेंस using the second version of pumping lemma we say that palindrome is non-regular, right. Let's take another example.
Now the second question says prime a raised to the power p, where p is prime. Now is this language regular? Now just now we have seen that prime is a non-regular language, but we will prove this that it is a non-regular language using the second version of pumping lemma, because first version से हमें मिल ही जाएगा that prime is regular language. First version से हम नहीं prove कर पाएंगे that prime is a non-regular language. So we'll apply the second version of pumping lemma. So second version apply करने के लिए we'll prove it by contradiction. Let us assume that prime is a regular language. Now if it is a regular language, then there is some FA that accepts that language, that accepts prime language, right? कोई ना कोई FA जरूर इसके exist इसके corresponding exist कर रहे हैं. Let us suppose कि उस FA में let us say that FA has 5 states. Right? Let us assume उस FA में 5 states हैं. Now consider any prime number. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें कंसिडर करना है कोई ऐसा वर्ड जो प्राइम हो एंड उसमें नंबर ऑफ लेटर्स आर मोर देन 5. तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5? द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5 इज 7. So let us assume consider the prime number 7. That means let us suppose हमने W लिया a raised to the power 7. अब इस W को अगर हम x y z में 3 स्ट्रिंग्स में रिप्रेजेंट कर पाए, that means a raised to the power 7 can be broken into 3 different strings x, y and z, right? Such that जब हम इसको पंप करें with respect to x, y and z, that is also prime for any value of n, right? यही हमें करना है. Let us suppose हम इस लैंग्वेज को जब हम पंप कर रहे हैं तो पंप करने के लिए जो स्मॉल वैल्यू ऑफ n है, let us suppose हम इसको 8 ले लेते हैं. कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं. We can take 2, 3, 4, 5 any value we can take. n की कोई वैल्यू हो सकती है. Let us suppose मैंने n की वैल्यू 8 ले ली, right? अब जब हम इस a raised to the power 7 जो हमारा प्राइम नंबर है, इसको मुझे ब्रेक करना है 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स में x, y एंड z, राइट? तो इसका क्या मतलब है, तीनों x, y एंड z दे हैव टू बी स्ट्रिंग्स ऑफ a's ओनली, राइट? जब हम इसे डिवाइड करेंगे x, y एंड z, दे आर ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ a's, राइट? नाउ जब हमने 3 स्ट्रिंग्स में ब्रेक कर दिया और इस तरीके से हमें करना है कि लेंथ ऑफ y हमारी नल ना हो एंड लेंथ ऑफ y हमारा नल ना हो एंड लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ y शुड नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ स्टेट्स व्हिच वाज 7, राइट? सो इट शुड नॉट, व्हिच वाज 5. सो वी हैव टेकन 5 स्टेट्स. तो हमारी लेंथ ऑफ x प्लस लेंथ ऑफ y शुड नॉट एक्सीड 5. इस तरीके से हमें इसको ब्रेक करना है. बट हमारा x हो, y हो एंड z हो, ये हमें पता है तीनों दे विल बी ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ a's ओनली, राइट? और जिस वर्ड तक हम इसको पंप कर रहे हैं दैट इज n इक्वल्स टू 8. लास्ट वाले एग्जांपल में हमने n की वैल्यू कंसीडर नहीं की थी. हम चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं, बट लेट अस अज्यूम कि अगर सपोज मैंने स्मॉल n की वैल्यू ली 8, यहाँ तक हम इसको पंप कर रहे हैं, तो जो भी मुझको वर्ड मिलना चाहिए वो नेचुरली प्राइम मिलना चाहिए अगर ये लैंग्वेज क्या है, मेरी रेगुलर लैंग्वेज है. तो नाउ बिकॉज वी नो, so x, y raised to the power 8 z, इसको जब हम पंप कर रहे हैं, can I write it like this also? y raised to the power 7, I can write it like this. अभी हमने देखा है कि जो x, y and z है वो सारी स्ट्रिंग्स ऑफ a's ही हैं, और जब आप a's को आपस में कॉन्कैटिनेट करोगे, डज नॉट मैटर आप किस ऑर्डर में उनको कॉन्कैटिनेट करो. अगर मैं a3 एंड a5 मेरे को a8 ही मिलना है, तो इसको आई कैन राइट इट एज a5 a8 also, a3 also, right? So when the strings have equal values, that does not matter in which order you concatenate them. तो x, y raised to the power 8 z तक हम इसको पंप कर रहे हैं. इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया लाइक दिस. अभी जो x, y, z है ये क्या है, जो मेरा प्राइम नंबर हमने कंसिडर किया है. हमने क्या नंबर कंसिडर किया, हमने कंसिडर किया a raised to the power 7, राइट? So this is a raised to the power 7, this is y raised to the power 7. नाउ ये जो y है, अभी हमने देखा दिस इज सम स्ट्रिंग ऑफ a's ओनली, राइट? ये जो y को जब आप पंप करते जाओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमने 8 लिया है यहाँ पे,
जब आप इसको पंप करते जाओगे तो y is strings of a's only, है ना, a का काउंट बढ़ता जाएगा इसमें। तो हम एज्यूम कर लेते हैं y is some strings of a's only, राइट, फॉर सम m की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो सकती है, बिकॉज m हमने देखा था पीछे दैट y कैन नॉट बी नल, राइट, तो m की कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर एग्जिस्ट करेगी। लेट्स चेक दिस, राइट। अब अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं a रेज टू द पावर 7, y की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं a रेज टू द पावर n, राइट, आई कैन राइट इट लाइक दिस। नाउ a रेज टू द पावर, this becomes this. Now when the bases are same, we can add the power. This becomes this. I can write this as like this also. A raised to the power 7, 1 plus m. I can write it like this, where m value is not equal to 0. अब ये जो मेरे को पंप होके वर्ड मिला, इसका क्या मतलब है, ये प्राइम होना चाहिए, राइट, प्राइम होगा तो ये हम कहेंगे कि लैंग्वेज रेगुलर है। बट इज दिस वर्ड अ प्राइम? जब हम m की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती। अगर मैंने m की वैल्यू 1 ली, m की वैल्यू 1 ली, तो ये क्या बन जाएगा 7 into 2, तो a raised to the power 14। इज दिस अ प्राइम नंबर? नो, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। m की वैल्यू अगर मैंने ली लेट्स से 2, दिस बिकम्स 3, a raised to the power 21। इज दिस अ प्राइम नंबर? नो, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। 4, a 28, इज दिस अ प्राइम नंबर? नो, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो जो भी पंप करके हमें वर्ड्स मिल रहे हैं वो तो सारे प्राइम नंबर नहीं है, बट अगर लैंग्वेज रेगुलर होती तो हमें सारे प्राइम नंबर मिलने चाहिए थे। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumption दैट प्राइम नंबर इज अ regular language. So second version of pumping lemma cannot be applied to this. We say that the language is non-regular. So this is how we prove that prime number is a non-regular language. So this was all about non-regular languages. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.